both required in the case of businesses. And today we are starting with income tax, which required in every case, whether a person is salaried, is a businessman and doing nothing, having a rental income or interest income. Income tax as word is suggest income tax is tax on income which you are earning. You have to pay taxes to the government. You cannot collect it from another person. That you have to pay from your own income. There is a little background of the income tax. Income tax is levied by the central government, which apply to all the states, including Jammu and Kashmir. It's effective from 1st April 1962. Bill presented in 1961, but applicable from 1st April 1962. Income tax is a tax which you have to pay on your income. In the whole income tax, we have to calculate only taxable income and the tax rate. Only these two cases we have to find out in the whole income tax act how to compute taxable income and what the tax rate will be applicable. And income tax is a direct tax which you have to pay from out of your own income. Some important terms which we are which we have to understand before understanding the income tax act. It is a previous year assessment year. Previous year means the year in which you are earning the income or the transaction is going on. Like we have year 2019-20 just ended in the March. 2019-20 जो भी मार्च में एंड हुआ है वो हमारा प्रीवियस ईयर है. तो उसका 2020-21 जो भी स्टार्ट हुआ है हमारा असेसमेंट ईयर है. प्रीवियस ईयर में जिस ईयर में हमारी जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रही है, सपोज यू आर सैलरीड तो यू आर गेटिंग सैलरी, एंड in the next year we have to assess that income and file returns and pay taxes to the government. Previous year just before the assessment year and assessment year next to the previous year. In this definition also you can understand previous year means financial year immediately preceding the assessment year, and assessment year means a period of 12 months commencing on 1st April every year. This is the definition of persons. What are those persons on which income tax will be applicable? तो कौन कौन पर्सन होंगे जिस पे इनकम टैक्स एप्लीकेबल होगा? वो इंडिविजुअल्स होगा लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म जो रन करती हैं, और एचयूएफ हिंदू एडवेंचर फैमिली जो भी कोई भी हिंदू फैमिली का करता होता है, देन ही कैन फॉर्म एचयूएफ on his name. He must be married and have one child. Then after only he can form a HUF. A company which is a private limited company and limited company, a firm like partnership firm, LLP, AOP or BOI. AOP means association of persons. Persons includes all the persons which he mentioned here, 7 persons. If any group of any person, like in one group there is a company also, a firm also, one individual also, they combined form a one group like trust or any other entity, university, then it will be a AOP. If there is a group of individuals only, then it will be a body of individuals.
By PAN number also we can identify if PAN number, if it was mentioned A, then it will be AOP. If it is was mentioned B, then it will be DOI. Local authority means municipal corporations like MCD in Delhi. It will cover in it is local authority. And artificial judicial person, it covers some universities which will never cover in above 6. 20% is having any question, then please keep me chat in the room. Then these are the 5 heads of income which are taxable under the Income Tax Act. Income from salary, when you are earning salary, pensions of any company, and income from house property, whether you are earning rental income, it will cover in house property. And if you are selling that property, it will cover in capital gains. Income from business or profession, if you are having any income running like business or profession means chartered accountant, advocates, it will cover in professions. And income from capital gain means when you are selling any property, shares, debentures, anything which you are selling, then it will cover in under capital gain. And rest cover under other sources like interest, dividend, which do not fall in the other heads. ये मान्य अग्रवाल का क्वेश्चन है, एओपी बीओआई में मेनली जो ट्रस्ट होती है वो कवर होती है. ट्रस्ट हैं, सोसाइटीज हैं, लाइक कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड नॉर्मल सोसाइटीज, सोसाइटी रेगुलेशन एक्ट में जो फॉर्म होती है वो इसमें आती है. There is an income tax slab under the existing scheme. In the budget, we have new scheme also. We will discuss later. Now we are discussing the existing scheme only. If an individual is age below 60 years, there is the no tax up to 2.5 lakh, and after 2.5 lakh to 5 lakh it will be 5%, and 5 to 10 it will be 20%, and more than 10 it is 30%. But if it is there is a senior citizen above the age of 60 years and less than 80 years, then up to 3 lakh it will be nil. Up to 3 to 5 it will be 5%, and 5 to 10 it is 20%. And in case of super senior citizen more than 80 years, up to 5 lakh exempt है, 5 to 10 20% है, और more than 10 30% है. और इन सब में एक रिबेट है 12,500 की, विच मीन्स जिसकी इनकम अप टू 5 लाख है तो वो कम्प्लीटली एग्जाम्प्ट हो जाती है, वेदर वो सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो या इंडिविजुअल हो. तो ये रिबेट जब 12,500 की मिल जाती है, जो 2.5 लाख पे 5% लगता है तो 12,500 आता है वो, तो कंप्लीट आपका 5 लाख तक इनकम एग्जाम्प्ट हो जाती है. अगर आपकी इनकम 5 लाख से क्रॉस कर जाती है तो ये रिबेट आपको फिर नहीं मिलेगी. और जो ये टैक्स है इसके ऊपर एक एजुकेशन सेस लगता है जो 4% है. अर्लियर इट वाज 3%, नाउ इट इज इंक्रीज टू 4%. प्लस सरचार्ज होता है, जो जिसकी इनकम 50 लाख से ऊपर है, 1 करोड़ से ऊपर है, उनके लिए सरचार्जेस होता है जो एप्लीकेबल होता है.
और यही स्लैब है जो आपके अगर एचयूएफ है, एओपी है, बीओआई है या आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, तो उन पे भी यही अप्लाई होता है, यही स्लैब से जो इंडिविजुअल्स पे अप्लाई होता है। एक एक कंपटीशन का फॉर्मेट है। जैसे हम इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, हमने इसमें इनकम कैलकुलेट नहीं करी है कि इनकम सपोज आपकी ग्रॉस टोटल इनकम किसी भी हेड से है, वो कोई भी एक्स अमाउंट है, उसमें हम डिडक्शन लेस करते हैं। जो वेरियस डिडक्शन अवेलेबल है, जो हम डिस्कस करेंगे आगे। उसके बाद आपकी नेट टोटल इनकम आ जाती है। उस टोटल इनकम पे हम टैक्स कैलकुलेट करते हैं, जो एज पर स्लैब अभी हमने जो डिस्कस किया उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। फिर जो टैक्स आता है उसमें हम रिबेट मिलती है 87A में, जो 12,500 मिल जाती है अगर इनकम आपकी 5 लाख तक है तो। उसके बाद हम सरचार्ज लें, हमारी रिबेट के बाद आती है। फिर सरचार्ज प्लस इनकम टैक्स जो है हमारा टोटल अमाउंट, उस पर हम एजुकेशन सेस लगाते हैं 4%। फिर हमारा नेट टोटल टैक्स पेबल आता है। फिर अगर अगर हम लेट पे कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट लगता है आपका 1%। देन टोटल टैक्स पेबल आ जाता है फिर आपका। अगर आपका ऑलरेडी प्रीपेड टैक्सेस है, कोई एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस या सेल्फ असेसमेंट टैक्स आपने कोई पहले पे किया हुआ है, तो वो आपका अमाउंट लेस हो जाता है। और नेट आपका टैक्स पेबल या रिफंडेबल जो बनता है वो आपको आ जाता है। यही एक बेस है जो आपका टैक्स कैलकुलेट करने का है। इसी में डिफरेंट कंडीशंस और डिफरेंट सब चीज़ है जो हमें समझनी होगी। क्या क्या डिडक्शन होती है, कैसे हमारी इनकम कैलकुलेट होगी सभी 5 हेड्स में, क्या हमें डिडक्शन मिलेगी, क्या एक्सपेंस अलाउड होगा, क्या नहीं होगा, क्या, ये सब चीज़ें होंगी इसमें। और ये मैंने सपोज ग्रॉस टोटल इनकम हमारी 6,50,000 है इस तरह के केस में, अगर उसकी और डिडक्शन है टीसी में 1,50,000 की, तो उसका नेट टोटल इनकम जो आ जाती है 5 लाख आ जाती है। 5 लाख पे जो उसका टैक्स बनेगा 2.5 लाख तक जीरो है। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% का स्लैब है, जो 2.5 लाख के ऊपर 5% लगाते हैं तो हम 12,500 आ जाता है। और उतनी ही हमारी मैक्सिमम रिबेट है, तो रिबेट 87A में 12,500 मिल जाती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है हमारा। ये जो मैं बता रहा हूँ आपको असेसमेंट ईयर 2021 के लिए है, जो अभी स्टार्ट हुआ है हमारा। जो अब रिटर्न जाएगी वो इस कैलकुलेशन के हिसाब से जाएगी, इस स्लैब के हिसाब से जाएगी। और मिस्टर बी के केस में सपोज उसकी 10 लाख की इनकम है और डिडक्शन उसको मिल जाती है 2 लाख रुपीज़ की। और टोटल इनकम ₹1 लाख की, तो जो 8 लाख रुपीज़ पे उसका टैक्स लगेगा 12,500 लगेगा। 5 लाख तक का 12,500। फिर 3 लाख पे आपका 20% लगेगा, जो टोटल टैक्स आ जाएगा आपका 72,500। और उसमें हमें रिबेट नहीं मिलेगी, क्योंकि टोटल इनकम जो है हमारी, रिबेट के लिए हमें नेट टोटल इनकम जो है वो हमें देखना है कि 5 लाख से ऊपर है या नहीं है। तो इस केस में 8 लाख है, अगर ये हमारी 5 लाख होती है तो हमें रिबेट मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता उसमें। तो हमारा जो रिबेट के बाद आ गया है 72,500 का टैक्स आ गया है। इस पर सरचार्ज कोई लगेगा नहीं। एजुकेशन से हमने 4% ऐड कर दिया है, तो टैक्स पेबल हमारा 75,400 हो गया। उसमें सपोज उसका टीडीएस डिडक्ट हो रखा था 50,000, तो 25,400 उसको टैक्स पे करना है, सेल्फ असेसमेंट टैक्स, और रिटर्न फाइल करना है। होप आपको ये समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल। अगर कुछ क्वेरी है तो डाल सकते हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी, कि जो बंदा सैलरी पे है उसके लिए क्या उसकी कंपटीशन रहेगी, कैसे क्या सैलरी का कोई एक्सपेंस उसको मिलेगा नहीं मिलेगा, या कोई डिडक्शन मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये सब हम इसमें देखेंगे सैलरी के अंदर। सैलरी के अंदर हमने बेसिक जो आती है सभी कंपनीज में, जो हमारा कंपोनेंट ब्रेकअप जो होता है, हमारा बेसिक सैलरी होती है, और हमारा एचआरए होता है, और अदर अलाउंसेस होते हैं। मेनली 50% बेसिक सैलरी होते हैं, 25% एचआरए होता है, और 25% अदर अलाउंसेस होते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सभी कंपनीज फॉलो करती हैं, कुछ वेरी कर सकता है।
तो हमारी बेसिक सैलरी जो डीए मिलता है, जो कुछ गवर्नमेंट कंपनीज में मिलता है, तो वो हमारा कंप्लीट टैक्सेबल होता है। अगर कोई बोनस देती है कंपनी या कोई कमीशन देती है, अगर आप काफ़ी कंपनीज देती हैं, अगर आप किसी रेफर करते हैं किसी पर्सन को, तो उस केस में आपको बोनस कमीशन मिलता है, तो वो भी आपका कंप्लीट टैक्सेबल होगा। सपोज आपको कोई एडवांस सैलरी मिल जाती है, नेक्स्ट ईयर की सैलरी थी 3 मंथ्स की, अप्रैल मई जून की, वो आपको मार्च में ही मिल गई, एडवांस सैलरी मिल गई, तो वो भी आपको एडवांस जब आपको रिसीव हुई, जब भी हम उसको टैक्सेबल ले लेंगे। और एरियर ऑफ सैलरी आपको रिसीव होती है आपका 1 ईयर इफेक्टिव फ्रॉम 1 ईयर बैक से आपका इंक्रीमेंट सपोज हो जाता है कि आपको 1 साल पहले से इंक्रीमेंट कर दिया इफेक्टिव डेट से, तो जो भी आपको एरियर मिलेगा पिछले 1 साल का, वो जब आपको जब मिलेगा, अगर पहले नहीं टैक्सेबल हुआ है, तो जब वो आपको मिलेगा जब ही वो टैक्सेबल होगा। जो एचआरए है, एचआरए का हम नेक्स्ट स्लाइड हम उसमें एक्सप्लेन करेंगे आपको कैसे उसकी कैलकुलेशन होती है। कन्वेंस अगर सपोज मिलता है आपको ऑफिस पर्पस के लिए, अगर आपको ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से आपको कहीं किसी और क्लाइंट के पास या किसी सप्लायर के पास, वेंडर के पास भेजा जाता है ऑफिस काम के लिए, तो वो एग्जाम्प्ट होता है। अगर आपको कन्वेंस मिल रहा है होम टू ऑफिस एंड ऑफिस टू होम, तो वो एग्जाम नहीं होता, वो आपका टैक्सेबल होता है। ऑफिस पर्पस के इवन जो रिम्बर्समेंट मिलती है आपको, अगर आप अपने ऑफिस के लिए काम के लिए गए हैं, वो फुल एग्जाम होता है। एक फ्री फूड और बेवरेजेस एग्जाम होता है अप टू 50 रुपीज पर मील एंड 2 मील्स पर डे, एंड 100 रुपीज पर डे के हिसाब से अगर पर्सन 22 डेज जाता है मंथ में, तो 2200 या 2400 मंथ में एग्जाम कर सकती है कंपनीज, इसको दिखा के, तो एम्प्लॉयज का टैक्स हम सेव कर सकते हैं। और इसका पर्पस जो होता है मेनली यही होता है कि पर्सन कोई अगर एम्प्लॉय कंपनी में काम कर रहा है और उसको ड्यूरिंग द वर्क हम कंपनी मील प्रोवाइड कर सकती है, उस पर्पज से अभी गवर्नमेंट ने किया हुआ है, अलाउ किया हुआ है। लेकिन इसमें कई कंपनीज देती है कि हम 2500 रुपये अलाउंस दे रहे हैं, अगर अलाउंस देते हैं तो वो टैक्सेबल होगा। उसमें आप फूड कूपन दे सकते हैं, मील कूपन जो 50 के मल्टीपल्स में हो, तो हम उसको एग्जाम कर सकते हैं। अगर वो डायरेक्टली 2500 रुपये अलाउंस दे देती है, तो वो टैक्सेबल होगा। कन्वेंस अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, ये सब टैक्सेबल है, पहले ही एग्जाम होता था। 1600 रुपये मंथली मेडिकल अलाउंस, 15,000 2 साल का एग्जाम होता था। उसके अगेंस्ट गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर आया था 50,000, लास्ट पहले 40,000 आया था, फिर उसको इंक्रीज करके 50,000 एक स्टैंडर्ड डिडक्शन अलाउड है। अगर किसी की 6 लाख रुपये सैलरी है, तो उसको 50,000 स्टैंडर्ड लेस हो जाएगा, तो उसकी जो टैक्सेबल सैलरी होगी 5,50,000 होगी। तो 50,000 रुपये सभी को मिलते हैं, सभी एम्प्लॉयज़ को, जो उसकी सैलरी में से लेस हो जाते हैं, उसके बाद उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। ये हमारी एचआरए की कैलकुलेशन है। जो हाउस रेंट अलाउंस वो इसलिए दिया जाता है, अगर कोई एम्प्लॉयज़ नियर बाय रह रहा है, घर उसका कहीं हो रहा है, अगर उस साथ कंपनी के आसपास रह रहा है, वो रेंटेड है, तो कंपनी अगर सपोज उसको एचआरए दे रही है, तो उसका जो रेंट है उस पर डिडक्शन अलाउ होती है। अगर उसको कितना एचआरए मिला कंपनी से, इन तीनों में से जो लिस्ट होगा वो उसको अलाउड होगा। एचआरए कितना मिला हुआ है कंपनी से उसको, और जो उसने रेंट पेड किया है ओवर 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो उसकी एनुअल बेसिक सैलरी है उससे 10% से कितना ऊपर है वो रेंट पेड जो उसका है। रेंट पेड में से हम 10% ऑफ बेसिक सैलरी लेस कर देंगे, जो अमाउंट आएगा आपका, और 50% या 40% ऑफ बेसिक सैलरी। 50% आपका उस केस में लागू होता है, सब मेट्रो सिटीज़ है, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब जो मेट्रो सिटीज़ आती हैं आपकी, और बाकी जो सिटीज़ में आपको 40% लागू होता है। इसका ये एग्जांपल है हमारा। अगर मिस्टर ए है, जो दिल्ली में रिसाइड करता है एंड गेटिंग सैलरी ऑफ ₹12 लाख पर एनम, और उसका जो ब्रेकअप है हमारा, 50% सपोज बेसिक है, 6 लाख की उसकी बेसिक होगी, 3 लाख रुपए का एचआरए है 25%, एंड 3 लाख रुपए का अदर अलाउंसेस है। वो जो रेंट पे कर रहा है 20,000 पर मंथ कैलकुलेट, पर मंथ वो रेंट पे कर रहा है, और हम इसमें एचआरए एग्जम्पशन कैलकुलेट करनी है।
जो आप बता सकते हैं एक बार कैलकुलेट करके? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हैं। HRA की समझ में या अमाउंट मुझे चैट करके बता सकते हैं क्या अमाउंट आएगा इसका? अगर किसी को नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा एक्सप्लेन कर सकता हूँ। प्लीज चैट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए। हम इसका आंसर देखते हैं। अभी एक आंसर आया है मेरे पास, 1,80,000 इसमें हमें एग्जेम्पशन मिलेगी। इसमें कंपनी ने जो HRA दिया है एम्प्लॉइज को 3 लाख रुपीज दिया है, 25% ऑफ 12 लाख रुपीज विच इज 3 लाख। इसमें जो रेंट पे किया है वो 2,40,000 पे किया है, और हम 10% ऑफ बेसिक लेस कर देते हैं। बेसिक जो 6 लाख रुपए है, 60,000 हम लेस कर देते हैं तो 1,80,000 हमारा आ जाता है सेकंड कंडीशन में। थर्ड में हमारा अगर वो 2,40,000 आ जाएगा, 40% हम ले लेते हैं तो इसका ये हरियाणा में होगा। तो 2,40,000 ले लेते हैं तो 1,80 उसको अलाउड हो जाएगा एग्जामेशन। और भी ये सबको क्लियर हो गया होगा। प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स so we can move ahead. तो अगर इसी केस में हम इसका इनकम टैक्स कैलकुलेट करते हैं तो उसके लिए एक बार 2 मिनट्स देता हूँ मैं आपको, आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, फिर मैं इसका आंसर शो करता हूँ आपको। इसी केस में हमें इनकम टैक्स कैलकुलेट करना है इसका। 12 लाख की इसकी इनकम है। बेसिक HRA का ब्रेकअप हमें पता है। रेंट हमें कितना पता है, कितनी हमारी HRA एग्जम्पशन होगी, या और कोई उसकी डिडक्शन नहीं है सपोज, तो क्या उस पर इनकम टैक्स लगेगा?
एक आंसर आया है अभी, तो हम आगे देखते हैं इसका आंसर क्या है। कि जो सैलरी इनकम थी 12 लाख रुपए की थी, एचआर एग्जम्पशन हमने जो कैलकुलेट किया था 1,80,000 उसका लेस हो जाएगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन उसको मिलेगी 50,000, तो उसकी जो टोटल टैक्सेबल इनकम होगी 9,70,000 आ जाती है। तो 970 पे हम जो कैलकुलेट करेंगे, 5 लाख तक तो 12,500 का टैक्स आता है आपका 5%। 5 लाख से ऊपर जो आपका आएगा टैक्स, 5 लाख से 10 लाख तक आपका 20% टैक्स आ जाएगा, विच कम्स टू 94,000। तो टोटल आपका जो टैक्स आ जाता है 1,06,500। उसमें हम एजुकेशन सेस लगाते हैं 4%, तो आपका जो टैक्स आ जाता है 1,10,710 760 रुपये। यहाँ तक किसी का डाउट है? Please everyone reply on the chat box. Then also I can understand you have understood or not, and we can move ahead. It is a only very basic part. दुर्गेश का क्वेश्चन है कि स्टैंडर्ड डिडक्शन कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसकी कोई कैलकुलेशन नहीं होती, फ्लैट 50,000 आपको मिलेगा, चाहे आपकी सैलरी 5 लाख रुपीज हो चाहे 5 करोड़ रुपीज हो। 50,000 सभी केस में आपका लेस हो जाएगा सैलरीज के केस में। यू डोंट नीड टू एनी कैलकुलेशन। Now this tax liability is as per old rule. New rule we will discuss later, which applicable from next assessment year. Applicable from this financial year 20 to 21 as for calculation of TDS in the companies. But for return filing, it will be applicable from financial year is 2021 and assessment year is 21 to 22. When you file the return for this period, you have to file for as per this rule only. But when you calculate the TDS for the employees have the option this time old scheme and new scheme. And for TDS, we have to consider both the scheme. So can we move ahead? Okay. So now we should understand the deductions under section 80C to 80U which are available for us.
deduction we can claim as a deduction from our total taxable income. There's a value deduction in the Income Tax Act. So we should definitely understand जो हमें टैक्स सेव करने में काफ़ी बेनिफिशियल होता है, जो हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, या फिर जो हमें पहले ही करना पड़ता है कि क्योंकि मार्च तक आप जो करोगे उसका इफेक्ट आपको नेक्स्ट ईयर में मिलेगा। मैं ब्रीफ कर देता हूँ आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिडक्शन होती है जो ज़्यादा यूज होती है आपके प्रैक्टिकल लाइफ में। इनकम टैक्स एक्ट काफ़ी बड़ा है तो मैंने वही टॉपिक्स लिए हैं जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं आपके प्रैक्टिकल लाइफ में, क्योंकि 3 days में हम पूरा कवर नहीं कर सकते। जो ज़्यादा यूज होता है वही हमने पार्ट लिया है, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, और इससे आपके 70-80% केस कवर हो जाएंगे। जो हमारी 80C की डिडक्शन होती है वो आपको ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ को मिलती है। कोई कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है तो वो किसी केस में अवेलेबल नहीं होती है। ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ कैन टेक दैट बेनिफिट। दिस इज अ लिमिट अप टू 1,50,000। इन दिस केस we can take the deduction of LIC if we have paid any life insurance premium to LIC or any other company, insurance company. If we are employee, then employer is deducting PF and employer contribution he also depositing. Then it is an employee provident fund. This also we can claim deduction under section 80C. There is a PF provident fund which everybody can deposit amount in any bank. You have to open the account of PF, then you can deposit the transfer the amount. And in PF, there is a lock-in period of 15 years. After 15 years only, you can withdraw the full amount, but you can withdraw partial amount in the specified conditions. Like in the case of marriage, you can withdraw some amount. And if that, in case of FD, you can do, but it should be 5 years tax saving FD. If you invest in 1 or 2 year FD, then it will not cover in ATC. It must be 5 years, and you cannot break that FD within that period. Must be locked in 5 years. एक म्यूचुअल फंड की इन्वेस्टमेंट है जो जनरली लोग करते नहीं है और काफ़ी अच्छी होती है 80C के कभी सभी और से कंपेयर किया जाए तो, क्योंकि इसमें आपका लॉकिंग पीरियड भी ओनली 3 years का होता है म्यूचुअल फंड के केस में, और आपकी रिटर्न जो आएगी वो भी आपकी अराउंड 12%, 15%, 18% तक आ सकती है सब्जेक्ट टू मार्केट कंडीशंस, बट विल बी डेफिनेटली बेटर देन FD बिकॉज FD रेट्स रिसेंटली ऑल्सो रिड्यूस्ड टू 6%। तो डेफिनेटली आपको मोर देन 10% की इसमें म्यूचुअल फंड में FD में रिटर्न्स मिलती है, और लॉकिंग पीरियड आपका 3 years का होता है। जो उसमें रिटर्न जो आती है आपकी वो भी ऑलमोस्ट एग्जाम की होती है, क्योंकि 1 year में आप 1 लाख तक आपका गेन आ रहा है तो वो एग्जाम है, और आपकी 10% की भी सपोज रिटर्न है तो आपकी 10 लाख तक की इन्वेस्टमेंट पे आपका जो 1 लाख की रिटर्न आएगी वो एग्जाम होगी। जो 80C को कवर करने के लिए आपको जस्ट 1,50,000 इन्वेस्ट करना होता है, तो डेफिनेटली आपकी एग्जाम ही होगी एवरी ईयर। और FD में आपको जो इंटरेस्ट आता है उस पर आपको टैक्स लगता है, वो जो एग्जाम नहीं होता है। और PF में लॉकिंग पीरियड इतना होता है 15 years का। तो कंसिडरिंग ऑल द फैक्ट म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट इज फार बेटर देन, and there is a NSC option, National Saving Certificate, which you can invest in the post office. There is a lock-in period of 6 years, and interest also exempt, which you can claim as a deduction under 80C. You have to show interest income in the total income, and interest you can take the deduction under 80C interest accrued during the year. PF का जो इंटरेस्ट आता है वो भी आपका एग्जाम्प्ट होता है। और किसी का अगर हाउसिंग लोन चल रहा है, अगर हाउसिंग लोन की हम प्रिंसिपल की रीपेमेंट करते हैं वो आपका 80C में आपको डिडक्शन मिल जाती है उसकी। अगर उसकी इंटरेस्ट की रीपेमेंट है तो उसका बेनिफिट आप हाउस प्रॉपर्टी में ले सकते हैं, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। और उसका जब प्रिंसिपल की रीपेमेंट करते हैं उसका बेनिफिट हम 80C में ले सकते हैं। लेकिन इस सब की लिमिट 1,50,000 ही है, आप इसमें किसी भी ऑप्शन में जा सकते हैं। और किसी के अगर चिल्ड्रंस है तो उसकी जो ट्यूशन फीस होती है वो भी आपको 80C में मिल जाती है।
स्कूल्स में काफ़ी फीस जाती है, लेकिन जो रिसीट पे आपका ट्यूशन फी मेंशन होता है, ओनली ट्यूशन फी ही की आपको डिडक्शन मिलती है। एक सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम होती है, वो जो सीनियर सिटीजन्स के लिए होती है, इसमें भी रिटर्न आपको अराउंड 8.6% रिटर्न अच्छी आ जाती है, लेकिन इसमें भी आपको सीनियर सिटीजन के लिए होती है, तो आपको फिर एज अ पेंशन आपको मिलती है इसका रिटर्न जो आती है। तो 80C में जनरली यही सब चीज़ें आती है, और भी काफ़ी चीज़ें हैं, लेकिन जो ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज होती है वही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। और एक सेक्शन होता है 80CCD, जो नेशनल पेंशन स्कीम। आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो इस इज अ काइंड ऑफ म्यूचुअल फंड, जो आपका अलग अलग कंपनीज में फंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट हो जाती है, लेकिन इसमें लॉक इन पीरियड ऑफ 60 ईयर्स होता है, जो आप आफ्टर 60 ईयर्स की एज पे मेच्योर होता है, जो आप 60 ईयर्स की एज के बाद उसको विड्रॉ कर सकते हैं फुल अमाउंट। पार्शल इसमें विड्रॉ की कंडीशन है, जो मैरिज एंड ड्यू टू अदर रीजंस यू कैन विड्रॉ सम अमाउंट, बट फुल अमाउंट आफ्टर 60 ईयर्स ही आप एज अ पेंशन आपको मिलता है इसमें, जिसकी आपको 50,000 तक डिडक्शन मिलती है अदर देन 80C। और जो न्यू स्कीम आई है, इसमें 80CCD ही आपको मिलेगी, बाकी सब डिडक्शन ऑलमोस्ट सब हटा दी गई है। न्यू स्कीम में आपको ओनली 80CCD ही अवेलेबल है। आपको 80C में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, वो कोई उसमें अवेलेबल नहीं होगी आपको अगर न्यू स्कीम में जाते हैं। ये जो सब स्कीम्स हैं ओनली इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है। 80CCD आपके ओनली इंडिविजुअल्स के लिए है। 80C इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए है, कोई कंपनीज के केस में या किसी और एसएससी के केस में कोई डिडक्शन नहीं है। ओनली 80G है डिडक्शन, जो आप कोई भी एसएससी ले सकता है, कंपनी हो, सोसाइटी हो, फर्म हो, एलएलपी हो, तो कोई भी 80G की डिडक्शन ले सकता है। जो इसमें टू टाइप्स के फंड है। एक फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें 100% मिलता है इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट इज इट इज अ डोनेशन। जो भी आप किसी फंड में डोनेशन करते हैं, लाइक पीएम केयर फंड्स विच इज आर जनरेटेड फॉर कोरोना वायरस एंड अदर्स फंड ऑल्सो, अगर आप इसमें कोई डोनेशन करते हैं तो इसमें 100% मिलता है आपको। और भी फंड्स हैं, या कोई ट्रस्ट में आप डिडक्शन इन्वेस्ट डोनेशन देते हैं, तो उस केस में 50% मिलता है आपका। जो भी डोनेशन देंगे आप, उसके अमाउंट में 50% आपको मिलेगा। और इसमें कंडीशन और होती है, जो आपकी डिडक्शन लेने से पहले का अमाउंट है 80G की, जिसमें आपने डिडक्शन लेस नहीं की है, उससे पहले जो अमाउंट आ रहा है आपका, उसका अप टू 10% आप डिडक्शन ले सकते हैं। अगर उससे पहले आपके 12 लाख का अमाउंट है, तो आप 1,20,000 तक डिडक्शन ले सकते हैं। और 50% वाले फंड में आप डोनेट करते हैं, तो 2,40,000 आप डोनेट करते हैं, तो 120 आपको मिलेगा। तो 120 से ऊपर नहीं ले पाएंगे, देयर इज अ लिमिट ऑफ 10%। और 80E एक डिडक्शन होती है, जो अगर किसी ने एजुकेशन लोन लिया है फॉर हायर स्टडीज मीन्स आफ्टर 12, फॉर एनी स्टडी यू कैन टेक लोन, एंड जो उस पर इंटरेस्ट पार्ट होता है वो उसको इंडिविजुअल को मिल जाता है जिसने लोन लिया है। अगर सपोज फादर ने अपने चिल्ड्रन के लिए लोन लिया है, क्योंकि चिल्ड्रन के नेम पे नहीं मिलता है, तो उसके फादर को जो इंटरेस्ट की डिडक्शन है वो उनको मिल जाएगी, जो उसका इंटरेस्ट पे होगा ऑन द पेमेंट बेसिस। तो एक डिडक्शन होती है आपकी 80TTA, 80TTB, जो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलती है। सपोज आपका सेविंग अकाउंट में कोई भी इंटरेस्ट आता है सेविंग अकाउंट से, तो आपका इंटरेस्ट एग्जाम्प्ट हो जाता है टीटीटीए में। आपको इनकम शो करनी होती है ओपीओ, और नीचे आप डिडक्शन ले सकते हैं अप टू 10,000। अगर आप सीनियर सिटीजन हैं और आपकी इंटरेस्ट इनकम एफडी से भी है और सेविंग अकाउंट से भी है, तो उस केस में 50,000 अलाउ किया है गवर्नमेंट ने, क्योंकि जो मोस्टली सीनियर सिटीजन होते हैं उनका फंड जो होता है एफडीज में ही पार्क होता है, तो उनको रिलैक्सेशन देने के लिए उनका जो इंटरेस्ट अमाउंट है फ्रॉम सेविंग अकाउंट और फिक्स डिपॉजिट, इट इज कम टू 50,000, बट यू हैव टू टेक दिस एज अ डिडक्शन, एंड आपको ऊपर इनकम में शो करके नीचे आप डिडक्शन में ले सकते हैं 50,000। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो
किसी को किसी सेक्शन में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है हो सकता है। 80 में कोई लिमिट नहीं है, जो भी आपका इंटरेस्ट पार्ट होगा उसका आप डिडक्शन ले सकते हैं कंप्लीट। एनी अदर क्वेश्चन? और प्लीज कंफर्म यस, so we can move ahead. 10% जो होता है, 10% सपोज आपकी 12 लाख रुपए की इनकम है, उसमें आपकी 80 ले लिया आपने 1 लाख रुपीज की डिडक्शन, तो आपकी 11 लाख रुपए की इनकम बची है, नेट टोटल इनकम। नेट टोटल इनकम जो होती है मैं आपको शो कर देता हूँ क्या है। इस केस में ले लीजिए आप, जो नेट टोटल इनकम सपोज आपकी इसमें 9,70,000 है, तो 9,70,000 में के बाद अगर आपकी कोई 80C की डिडक्शन होती है या कोई और डिडक्शन होती है, उसको भी लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा, उस 80G की डिडक्शन लेस करने से पहले जो आपका अमाउंट आएगा, उस अमाउंट पे आपको कैलकुलेट करना होगा, उसका आप 10% तक ले सकते हैं। सपोज इसमें कोई डिडक्शन नहीं है, तो 9,70,000 का आप 10% लेंगे, 97,000 तक आप 80G की डिडक्शन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं ले सकते। आपकी 970 की इनकम में आपने पूरा ही कोई डोनेशन कर दिए तो पूरा ही आपको एग्जामेशन नहीं मिलेगी। अप टू इनकम का 10% तक आप बेनिफिट ले सकते हैं। डोनेशन आप जितने भी करें, लेकिन बेनिफिट आपको 10% तक ही मिलेगा। किसी का और कोई डाउट है तो हम ये तो आगे बढ़े इसमें। ओके, तो नेक्स्ट इज डिडक्शन ऑफ 80D। सभी लोग आप लोग मेडिक्लेम करवाते होंगे, जो मेडिक्लेम की डिडक्शन मिलती है हमें 80D की मिलती है, 80D के अंदर मिलती है। उसमें जो कंडीशंस होती है आपकी, वो ओनली ये भी डिडक्शन आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही मिलती है। RD and FD is same thing. FD is a lump sum investment, RD is a monthly investment, बट सेम है वो, तो सेम ट्रीटमेंट होता है, उसमें मिलता है आपको टीटीपी। एटीडी भी आपको इंडिविजुअल और एचयूएफ के केस में ही मिलती है। आप और ये जो डिडक्शन है, अगर सपोज आप अपने स्पाउस के लिए या सेल्फ के लिए या चिल्ड्रंस के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उनको मिलती है। आप अपने पेरेंट्स के लिए इन्वेस्ट मतलब प्रीमियम पे कर सकते हैं तो उनके लिए मिल सकती है। अगर आप अपना करते हैं तो उसकी 25,000 की लिमिट्स हैं, और पेरेंट्स के लिए एड ऑन करते हैं तो पेरेंट्स के लिए एडिशनल आपको 25,000 की मिल जाएगी। अगर आपके पेरेंट्स या आप कोई भी सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में एडिशनल 25,000 मिल जाएगी, क्योंकि सीनियर सिटीजन जितनी आपकी एज इंक्रीज होती रहती है उसका प्रीमियम भी काफ़ी इंक्रीज होता रहता है। और सीनियर सिटीजन के केस में काफ़ी उसमें अमाउंट में डिफरेंस आ जाता है, तो सीनियर सिटीजन के केस में एडिशनल आपको 25,000 मिल जाती है। अगर आप हैं या आपके पेरेंट्स हैं तो सभी की केस में एडिशनल 25,000 मिल जाएगी। और एडिशनल डिडक्शन एक ये भी मिलती है आपको, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप लोग कराते हैं आजकल। इसमें डोनेशन हमें 10% तक ही बेनिफिट मिलेगा। अगर 50% वाले में करें, 100% में करें, लेकिन उसमें लिमिट 10% की रहेगी आपकी इनकम का।
आप डोनेशन किसी में भी कर सकते हैं, लेकिन आपको करने से पहले देखना होगा कि वो 10% आपका कितना आ रहा है बेनिफिट कंसीडर करने के। मैं 1 मिनट रुक जाता हूँ, अगर किसी को क्वेश्चन है तो फिर अभी डाल सकता है, अभी तक के पार्ट पे, नहीं तो फिर इसमें आगे बढ़ते हैं। मैक्सिमम डिडक्शन अभी यहाँ आ रहे हैं, वही सेम एग्जांपल है आपके लिए, आगे क्वेश्चन है उसमें। तो इसमें आप सेल्फ, स्पाउस और चिल्ड्रन के लिए 25,000 है, अगर आपके पेरेंट्स के लिए करते हैं तो उसमें एडिशनल 25,000 है, अगर आप और स्पाउस या फिर आपके पेरेंट्स कोई भी सीनियर सिटीजन है तो उसमें एडिशनल 25,000 है। और जो आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप होते हैं आपके, जो फुल बॉडी चेकअप होते हैं, अगर आपको कोई डिजीज नहीं है तो भी आप फुल बॉडी चेकअप कराते हैं, तो उसका भी गवर्नमेंट 5,000 रुपीज आपको रिडक्शन देती है। लेकिन इसकी जो कंडीशंस हैं, आपकी जो पेमेंट्स है कैश में नहीं होनी चाहिए किसी भी केस में, यू हैव टू पे चेक और बाय ऑनलाइन ट्रांसफर, देन ओनली यू कैन टेक द डिडक्शन। तो इसमें एक क्वेश्चन आपके लिए अभी आ गया है। If your parents and senior citizen also, then it will be 50,000. Then you can say it is 50,000 for senior citizen if your parents is senior citizen. No, it is not allowed in cash. In complete section 80D is it is mentioned that you have to, no deduction will be allowed if you pay in cash. मैं आपको बताता हूँ, नहीं क्या तभी नेक्स्ट हमारा है वो मैक्सिमम डिडक्शन आप कितनी ले सकते हैं टीडी में। प्लीज वेट। Is not allowed, but we can discuss it later whether it is allowed or not. But as per my knowledge, it is not allowed. ओके, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अलाउड है कैश में, लेकिन बाकी जो डिडक्शन है वो अलाउड नहीं है। योर राइट मान्य कर दिया।
तो एक ये डिडक्शन है टीजीजी, जो काफ़ी कम यूज़ करते हैं लोग, लेकिन काफ़ी बेनिफिशियल हो सकती है सेल्फ एम्प्लॉयड के केसेस में। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है और आप सोच रहे हैं कोई डिडक्शन मेरे को मिल जाए, तो आप ये डिडक्शन का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और सैलरीड हैं, सैलरीड अगर आपको एचआरए नहीं मिल रहा है तो ही आप सैलरी ले सकते, बेनिफिट ले सकते हैं। जो जनरली सबको एचआरए मिलता है, तो जनरली बेनिफिट ये सेल्फ एम्प्लॉयड केस में ही मिलता है। अगर आपके नाम पे, आपके स्पाउस के नाम पे कोई रेजिडेंशियल हाउस नहीं है जहाँ पे आप वर्क कर रहे हैं या जहाँ पे आपका बिजनेस है, उसकी कंडीशन होती है कि आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आपके पेरेंट्स के नाम पे हो सकती है, लेकिन आपके और स्पाउस के नाम पे कोई प्रॉपर्टी ना हो। और उसकी जो डिडक्शन मिलती है अप टू 5,000 रुपीज़ मंथली, मैक्सिमम जो मिल सकती है आपको 60,000 इन अ ईयर, यू कैन टेक डिडक्शन ऑफ दिस। रेंट, जो आपका जो भी आप रेंट इसमें पे कर रहे हैं, उसमें आपको लेस 10% ऑफ द इनकम, लाइक इन एचआरए ऑल्सो वी आर डिडक्टिंग 10% of the basic. Here is a 10% of the income we have to reduce from the rent part. And third condition is 25% of the total income. टोटल इनकम का 25% मैक्सिमम अलाउड होगा। ये थ्री कंडीशन में से जो भी हमारा लिस्ट होगा वो हमें डिडक्शन मिल जाएगा। इसके केस में एक 10 BA फॉर्म फाइल करना होता है डिडक्शन लेने के लिए, जिसमें आपकी रेंट की डिटेल जाती है कि आप रेंट कितना पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं, वो सब आपका रेंट की डिटेल जाती है। क्वेश्चन सब आपके लिए ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्शन पार्ट। अगर यहाँ तक का किसी का डाउट है तो पूछ सकते हैं, देन वी कैन मूव फॉर द क्वेश्चन पार्ट। बिफोर फाइलिंग द आईटीआर यू हैव टू फाइल 10 BA। इट इज अ डिडक्शन विच एवरीवन कैन टेक। जनरली जो प्रॉपर्टीज पेरेंट्स के नाम पे ही होती है, तो कोई भी इसको डिडक्शन वो ले सकता है। जो अभी काफी को नॉलेज नहीं है तो कोई नहीं लेता है इसकी डिडक्शन। सो हियर इज द क्वेश्चन फॉर यू ऑन द बेसिस ऑफ डिडक्शन पार्ट। एक मिस्टर ए है जो दिल्ली में रहता है, जो 12 लाख रुपए की सैलरी मिल रही है उसको। If he has invested 50,000 rupees in tax saving mutual fund, 30,000 in PPF, and paid tuition fees of rupees 30,000 each of his three children, then how much total deduction he can avail under Section 80C? Please reply in the chat box. Yes, Manya and Kanika answer is correct. Tuition fees allowed for only two children. 1,40,000 you will get. The next question, maximum how much deduction can a person avail under Section 80D considering all the conditions?
everybody should try to take part in these questions. It may be wrong or right, but everybody should try at least. Answer is if you and your spouse is senior citizen and your parents is also senior citizen, then for your family 50,000 and your parents also 50,000, you can take deduction, and 5,000 for preventive health checkup. Total 1,05,000 we can avail under section 80D. Hope it is clear now. Here is another question. If Mr. A is a shopkeeper and self-employed in Delhi and earning profit of rupees 7 lakh rupees in the financial year 1920, he is a paying rent of rupees 10,000 monthly for his residence in Delhi and does not own any residential property in his name. So how much deduction under section 80 double G he can avail? Please text me the amount. I have received two reply. Answer is correct. It is 50,000. First condition is 5,000 monthly. It is 60,000 annually.
Second is 25% of your income, which is 1,75,000 of 7 lakh rupees, and rent paid over 10%. You have paid 10,000 monthly, so 1,20,000 on annual basis minus 7,000, which is 10% of your income. So 50,000, list of the following you can take deduction as under section 80GG. Okay, you can move ahead. Now we are starting income from house property. What are the incomes covered under this head? If you are renting any property and getting the rental income, then it will be covered under this income from house property. तो हाउस प्रॉपर्टी में अगर कोई भी प्रॉपर्टी आपकी रेंटल इनकम आ रही है तो वो आपकी इस हेड में कवर होगी। एक एग्जांपल से हम क्लियर हो जाएगा इसमें। अगर आपकी सपोज कोई प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट है जिसका रेंट आपका एनुअली आ रहा है 12,50,000, उसमें यू हैव पेड म्यूनिसिपल टैक्सेस। इसमें आपको ओनली मैं प्रैक्टिकल अप्रोच से समझाऊंगा। थ्योरेटिकली आप पढ़ेंगे तो उसमें ग्रॉस एनुअल वैल्यू एंड म्यूनिसिपल वैल्यू, फेयर वैल्यू, देयर इज अ लॉट्स ऑफ थिंग, बट इन प्रैक्टिकल we should find out the how much rent you are receiving during the year. So we are taking 12,50,000 as your rental income. Less municipal taxes, it will allowed only on payment basis. If you have paid, if your tenant have paid the taxes, then you cannot take the deduction. If you have paid during the year, then you can take the deduction of this municipal taxes. Income after municipal tax. The government allows the 30% standard deduction from all the rental incomes. It is allowed for repair maintenance expenses, is so that there is a सब लोगों के लिए सेम रहे हमारा 50%। नहीं तो कोई लोग एक्सपेंसेस, अगर गवर्नमेंट अलाउड करेगी आप एक्सपेंसेस क्लेम कर सकते हैं रिपेयर मेंटेनेंस के, तो कोई 5 लाख क्लेम करेगा, कोई 12 लाख क्लेम कर लेगा। तो उस चीज़ को रिमूव करने के लिए सबके लिए गवर्नमेंट ने 30% अलाउड करी है। अगर आपका कोई एक्सपेंडिचर होता है नहीं होता है तो आपको ये चीज़ प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपने कोई एक्सपेंडिचर किया है। आप स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ले सकते हैं, कोई भी रेंटल इनकम हो आपकी। इसके लिए कोई अमाउंट की कोई लिमिट नहीं है, जितना भी रेंटल इनकम हो उसमें स्टैंडर्ड 30% आपको मिल जाएगा। और एक इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज करी है और उसके लिए लोन के थ्रू लिया, आपने हाउसिंग लोन लिया है, और हाउसिंग लोन का जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन आपको यहाँ मिल जाती है। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, आपने रेंट पे दिया हुआ है, तो उसमें कोई लिमिट नहीं है आपकी, इंटरेस्ट आप जितना मर्जी क्लेम कर सकते हैं जो आपका एक्चुअल पेड किया आपने। लेकिन अगर आपकी प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है या कोई वैकेंट है, उस केस में आपका लिमिट होती है कि आप 2 लाख तक ही ले पाएंगे। अगर आपकी ओन जिस प्रॉपर्टी में आप खुद रह रहे हैं उस प्रॉपर्टी आपने रेंट पे लिया है, तो उस केस में आपको 2 लाख रुपीज तक की डिडक्शन यहाँ पे मिल जाती है। तो नेट टोटल इनकम आपकी आ जाती है 5,40,000, जिसमें हमारा टैक्स कैलकुलेट होगा आपको 5,12,500 एंड 40,000 पे 20%, विच इज 8,000। तो 20,500 हमारा टैक्स हो गया। इस पे हम एजुकेशन सेस लगाएंगे तो 21,320 आपका टोटल टैक्स पेबल आ जाता है। यही एक बेसिक है वैसे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का। म्यूनिसिपल टैक्सेस का मैंने आपको बता दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन इट इज फॉर रिपेयर मेंटेनेंस। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन लिमिटेड टू 2 लाख इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी। अगर आपने कोई प्रॉपर्टी ली है, लैंड लिया है और उसको आप कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो लैंड आपने लोन पे लिया है, होम लोन कराया आपने, उस लोन का जो इंटरेस्ट होगा वो इंटरेस्ट की डिडक्शन आपको जब मिलेगी जब आपको पुट टू यूज हो जाएगी आपकी एसेट, मतलब कंस्ट्रक्शन उसका कंप्लीट हो जाएगा, तो उस ईयर से आपको
in 5 equal installment, you can take the deduction of this interest part. किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इंटरेस्ट पार्ट इसमें 3 कंडीशन होती है। सपोज आपकी प्रॉपर्टी रेंट पे लेट आउट है, अगर आपने प्रॉपर्टी रेंट पे दी हुई है तो इंटरेस्ट आप जितना मर्जी क्लेम कर सकते हैं। जो आपका ड्यूरिंग द इंटरेस्ट एक्रू हो रहा है, जो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं उसमें हाउसिंग लोन पे, वो आपको इंटरेस्ट पार्ट यहाँ डिडक्शन मिल जाती है, और उसका जो प्रिंसिपल पार्ट है वो आपको 80C में मिल जाता है। तो हाउसिंग लोन के आपको यहाँ डबल बेनिफिट मिल जाते हैं इनकम टैक्स में। और अगर सपोज आपकी प्रॉपर्टी, आपने खुद के लिए प्रॉपर्टी खरीदी है, लेट आउट नहीं है वो, या आपकी प्रॉपर्टी वैकेंट है, तो उस केस में आपको ओनली अप टू 2 लाख रुपीज़ तक का ही डिडक्शन मिलेगा, क्योंकि गवर्नमेंट को उसमें कोई टैक्स नहीं जा रहा अलग से, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी खाली पड़ी है। तो उसमें गवर्नमेंट ने लिमिट लगाई है कि आप 2 लाख से ऊपर कोई डिडक्शन नहीं ले सकते इंटरेस्ट की। आपका इंटरेस्ट कितना भी होगा, साल का 4 लाख 5 लाख, लेकिन आपको साल में 2 लाख रुपए ही मिलेगा। अगर इस केस में उसमें बेनिफिट ले सकते हैं, अगर एक प्रॉपर्टी के 2 ओनर्स हैं, को ओनर्स हैं, तो उस केस में पर पर्सन इट इज लिमिट, ये लिमिट है 2 लाख रुपए की। तो दोनों बंदे 2-2 लाख रुपए की डिडक्शन ले सकते हैं उस केस में, अगर 2 पर्सन को ओनर्स हैं इसमें। और जो आपका कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है, अगर प्रॉपर्टी आपकी रेडी नहीं हुई है, कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने लैंड लिया है, परचेज किया है बाय टेकिंग लोन फ्रॉम द बैंक, हाउसिंग लोन, देन जो इंटरेस्ट का पार्ट होगा 5 ईयर्स का, अगर जब तक कंस्ट्रक्शन होगी, सपोज 3 ईयर्स में कंस्ट्रक्ट हो जाती है प्रॉपर्टी, जो 3 ईयर्स का इंटरेस्ट का पार्ट होगा वो आपको नेक्स्ट 5 ईयर्स में मिलेगा इक्वल इंस्टॉलमेंट में। अगर 1 लाख आपका सपोज इंटरेस्ट पार्ट है 1 ईयर का, 3 लाख रुपीज जो आपके एक्यूमुलेट हो गए इंटरेस्ट के, जो आप जिसका बेनिफिट नहीं लिया है, उसका आप नेक्स्ट 5 ईयर्स में ले सकते हैं बाय 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट। Does anyone have any doubt? So please mention in the chat box. Please reply so we can move ahead. Okay, so we are now starting the new scheme, which was proposed in the budget 2020 and which also approved. There is a new section 115 BSC, under which section the new scheme is proposed. This is the new scheme which is optional. Anyone can opt for this scheme or not opt, then he can continue with the existing team.
existing scheme, and it will be applicable from the assessment year 21 to 22 and financial year 20 to 21. Up to 2.5 lakh, 2.5 lakh, there is a nil tax, same as per existing scheme. 2.5 to 5, it is 5%, and 5 to 7.5, it is 10%. They have made the separate breakups of 2.5 lakhs. 7.5 से 10 तक 15% है, 10 से 12.5 20% है, 12.5 से 15 आपका 25% है, एंड मोर देन 15 30% है, जो सेम है आपका एग्जिस्टिंग स्कीम से। जो इसमें डिफरेंस आता है आपका 5 से लेकर 15 तक में जो स्लैब्स में चेंजेस हैं, वही डिफरेंस है। मोर देन 15 सेम है एंड अप टू 5 भी सेम है, लेकिन इसमें रिबेट आपको सेम मिलती है इसके अंदर भी 12,500 की। तो अप टू 5 लाख अगर आपकी 5 लाख तक की इनकम है तो वो एग्जाम हो जाती है। लेकिन इस केस में आपको काफ़ी डिडक्शन जो होती है 80C और स्टैंडर्ड डिडक्शन जो सैलरी पे आपको मिलती है 50,000 और एचआरए जो आपको बेनिफिट मिलता है, वो सब आपको बेनिफिट आपको लूज करना पड़ेगा। देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस न्यू स्कीम। ये स्कीम मेनली उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगी अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है किसी की, और कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, तो उस केस में ये स्कीम आप कर सकता है, तो उसका टैक्स लेस रहेगा। लेकिन उसमें भी कंडीशन है, जैसे आप एक बार ऑप्शनल है, अगर एक कुछ पर्सन्स के लिए एक बार आपने ऑप्ट कर लिया तो वापसी नहीं आ सकते हैं। तो हम वो कंडीशन एक बार देख लेते हैं क्या है उस केस में। अगर आप इंडिविजुअल या एचएफ हैं, अगर आपका कोई बिजनेस इनकम नहीं है, ये स्लैब ओनली वो इंडिविजुअल एचएफ के लिए है जो प्रीवियस पर्सन के लिए अप्लाई होती थी इंडिविजुअल एचएफ। अगर आपकी कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उस केस में आपके लिए एवरी ईयर ऑप्शन है कि आप न्यू स्कीम में जाना चाहते हैं या ओल्ड स्कीम में जाना चाहते हैं। अगर किसी की बिजनेस इनकम नहीं है, अगर सैलरी इनकम है या कैपिटल गेन इनकम है या फिर अदर इनकम है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो वो ये बेनिफिट ले सकता है। उसका बिजनेस नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हर साल ऑप्शन है कि वो न्यू स्कीम में जाना चाह रहा है या पुरानी स्कीम में, हर साल वो चेंज कर सकता है। अगर किसी का बिजनेस है तो उसके लिए वो, अगर वंस वो न्यू स्कीम में चला जाता है तो आपको वो सब्सिक्वेंट सभी ईयर्स में अप्लाई हो जाता है। लेकिन फिर वो अगर वो स्कीम से बाहर आता है तो दोबारा वो न्यू स्कीम में नहीं जा सकता। इसमें ये रहता है अदर जिसका बिजनेस इनकम है, the option once exercised for a previous year shall be valid for that previous year and all subsequent years, and once option exercised can be withdrawn once for previous year other than the, अगर सपोज आपने एक साल में ले लिया और उससे नेक्स्ट ईयर आप बाहर आना चाह रहे हैं न्यू स्कीम से, एक बार बाहर आ गए तो फिर आप दोबारा उस स्कीम में नहीं जा सकते, आपको ओल्ड स्कीम में ही फॉलो करना पड़ेगा। और ये न्यू स्कीम लेके आने का पर्पज यही था कि टू सिंप्लीफाई द टैक्स। गवर्नमेंट आगे डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आने चाह रही है जिसमें आपको ये सभी डिडक्शंस हैं जो काफ़ी, जो इनकम टैक्स कॉम्प्लेक्स हो चुका है, इतनी सारी डिडक्शन एग्जम्पशंस, काफ़ी बड़ा एक्ट हो गया है, तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कोड लेके आना चाह रही है, जो वन स्लॉट में एक बार नहीं लेना चाह रही कि एक बार में हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, लोगों को प्रॉब्लम होगी कि हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का वो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा आगे। उसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो वन स्लॉट में इम्प्लीमेंट नहीं करना चाह रही, वो धीरे-धीरे इस एक्ट में चेंजेस कर रहे हैं। देन मे बी 2-3 इयर्स आफ्टर देन ही कैन इम्प्लीमेंट डायरेक्ट टैक्स कोड टू सिंप्लीफाई द इनकम टैक्स। उसमें सभी आपकी डिडक्शंस और ये एग्जम्पशंस रिमूव हो जाएंगी। सिंपल आपको आपका इनकम आपको डालना होगा, कितनी आपकी सपोज 10 लाख की इनकम है, उसमें टैक्स आपका आएगा, टैक्स पे करो और रिटर्न फाइल करो। उसमें कोई क्या आपकी डिडक्शन है, क्या कंडीशंस है, तो आपको कुछ उसमें देखने की जरूरत नहीं होगी। ये पर्पस है इसको स्कीम को लेकर आने के लिए, इसलिए स्टार्टिंग ऑप्शनल है, धीरे धीरे इसको मैंडेटरी हो जाएगा। सर इस स्कीम में काफ़ी आपकी डिडक्शन एग्जाम्पशंस लूज हो जाती है न्यू स्कीम में, तो हम डिटेल में देखेंगे आगे क्या क्या आपकी डिडक्शन मिलेंगी और कौन सी नहीं मिलेगी। ये हम यहाँ पे समझ लेते हैं, किसी की अगर बिजनेस इनकम नहीं है तो उसके लिए ऑप्शन एवरी ईयर ही कैन चूज ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम। अगर किसी की बिजनेस इनकम है
और वो ऑप्शन एक बार न्यू स्कीम में चला जाता है और फिर वापसी आ जाता है, तो आफ्टर दैट ही कैन नॉट मूव टू न्यू स्कीम. So for businessman, you have to choose very cautiously that what scheme will be beneficial for him, and so that he can continue that scheme. He don't have option for every year, then he can choose every year the scheme which will be beneficial for him. He have to choose once only. And these are the deductions exemption which not available under the new scheme. HRA you cannot take the benefit of HRA and standard deduction of 50,000 which you are taking in the salary. You cannot take the under the new scheme. And deduction of interest on self occupied or vacant property. जो आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी के लिए 2 लाख रुपीज की लिमिट है, अगर आप न्यू स्कीम में जाते हैं तो वो आपको सेल्फ ऑक्यूपाइड और वैकेंट प्रॉपर्टी के लिए कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी इंटरेस्ट की. ओनली लेट आउट केस में मिलेगा डिडक्शन इंटरेस्ट का. और डिडक्शन अंडर 80C, 80D, 80E, 80G, ये सब डिडक्शन आपको कोई नहीं मिलेगी इसके अंदर. मैंने आपको मेन डिडक्शन मेंशन किए, इसमें काफ़ी और मेंशन होती है साइंटिफिक रिसर्च और वो सब काफ़ी चीज़ें हैं जो इस लिस्ट में नहीं है. एक्सेप्ट आपको 80 CCD मिलेगी जो आपकी एनपीएस की डिडक्शन है. एक आपको 80 JJAA मिलेगा जो उस केस में होता है आपका एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज करने के लिए होता है. अगर कंपनी बड़ी है और आपके पीएफ में रजिस्टर्ड एम्प्लॉयज़ हैं, अगर 1 ईयर में 1 अप्रैल को 50 एम्प्लॉयज़ हैं और वो 31 मार्च तक 50 to 100 रजिस्टर हो जाते हैं पीएफ में, तो आपने जो एम्प्लॉयमेंट दिया है लोगों को, उस केस में एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट मिलता है प्रोपोर्शनेटली. 30 ईयर्स 1 ईयर में, 40% नेक्स्ट ईयर में, और रेशो है आपकी 3 सालों में आपको बेनिफिट मिलता है उसका. अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट एनकरेज करने के लिए डिडक्शन लेके आए, ये आपको मिलेगा 80 JJAA और 80 CCD एनपीएस मिलेगा आपको 50,000. बाकी सभी डिडक्शन आपको लूज करना पड़ेगा टू वेल दिस स्कीम. और इसमें काफ़ी और डिडक्शन है जो नहीं ले सकते. If no business income, then he has the option to withdraw in one financial year, take in next financial year. अगर कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो एवरी ईयर उसके पास ऑप्शन है कि कभी ओल्ड में जा सकता है, कभी न्यू में जा सकता है. उसके लिए कंप्लीट ऑप्शन है. अभी फुल्ली ओपन है, वो कभी जब मर्जी चेंज कर सकता है. बिजनेस पर्सन के लिए रिस्ट्रिक्शन है कि वो चूज उसको अपना ध्यान से करना पड़ेगा कि क्या उसके लिए स्कीम बेनिफिशियल है. एनी अदर क्वेश्चन?
So we can move ahead. There is a comparison of the old scheme and new scheme. If any person has reduction under Section 80C of 1.5 lakh and 80D of rupees 25,000 and standard reduction of rupees 50,000 on the salary, then which scheme will be beneficial for him? There is a comparative analysis based on the different level of income. If he has 5 lakh rupees income, then in both the cases there will be zero tax. If he has 7 lakh rupees of income, then as per old scheme there will be no tax, because he will take 1.5 lakh under Section 80C and 50,000 under standard deduction and 25% 80D. So 7 lakh 25,000 till he don't need to pay any tax till 7 lakh 25,000. And as per new scheme, he has to pay 32,500, because he cannot take the deduction of 80C, 80D and 50,000 standard deduction. अगर उसकी 10 लाख तक की इनकम होती है तो ओल्ड स्कीम में 67,500 टैक्स लगेगा और न्यू स्कीम में 75,000 लगेगा. This tax is before education cess. No education cess has been added in this. एंड 12,50,000 अगर उसकी इनकम हो जाती है तो उस केस में 1,20,000 उसका ओल्ड स्कीम में आता है और 125 न्यू स्कीम में आता है. अगर इनकम उसकी 15 लाख तक है तो ओल्ड स्कीम में 195 रहेगा, न्यू स्कीम में 187,500 रहेगा. तो 15 लाख के लेवल पे उसके ये न्यू स्कीम बेनिफिशियल आ रही है तो उसका 7,500 का टैक्स सेव हो रहा है, जो आपका कंटिन्यू रहेगा डिफरेंस टिल द 1 crore 2 crore if any amount, because after 15 lakh there is a same percentage of tax, is 30% in both the scheme. So there will be a difference of only 7,500 after the 15 lakh rupees. In 20 lakh rupees, there is a difference of 7,500, 345 as per old scheme and 337,500 as per new scheme. So this is a comparative analysis. If any one person does not have these 80C and 80D deduction and is a self-employed, then he cannot take HRA and salary deduction also. Then maybe new scheme will be beneficial for him. So this must be decided for every client, for every SSC for filing his return. Till time, if anyone have any question, then please mention in the chat box. We have not planned residential status, but we can cover it in the last class if it is the demand of everyone. Does any one person requires any specific topic
If he wants to cover, then he can let us know so we can plan accordingly. Maybe in the last class or maybe in the annual return also we will cover in the last class. ये मैं सीटीसी और ग्रॉस सैलरी ये सब एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको क्या उसमें डिफरेंसेस रहता है. नेट सैलरी, ग्रॉस सैलरी, इसमें 3 टर्म्स होती है आपकी. सैलरी इन हैंड जो जनरली लोग यूज होती है इंडस्ट्री में, एंड सीटीसी पार्ट एंड ग्रॉस सैलरी. जो आपकी सैलरी इन हैंड जो होती है वो आपको जो तो सिंपल है, आपके बैंक में जो पैसा आ रहा है इन हैंड जो आ रहा है आपका आफ्टर डिडक्शन ऑफ एनी पीएफ, ईएसआई, टीडीएस, वो सब डिडक्शन होने के बाद आपका जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है वो इट इज अ सैलरी इन हैंड. ग्रोस सैलरी जो होती है, ग्रोस सैलरी आपकी जो होती है वो आपका बेसिक डीए और आपका बोनस और ये सब जो भी अमाउंट है आपका वो सब उसमें कवर होता है. लेकिन उसमें आपका ग्रेचुटी है, ग्रेचुटी पार्ट आपका ग्रोस सैलरी में नहीं आएगा. और आपका जो और एम्प्लॉय शेयर जो होता है पीएफ का, पीएफ जो एम्प्लॉयर शेयर जो अपना जमा कराता है वो इसमें नहीं आता है ग्रोस सैलरी में. जो आपका ग्रेचुटी है, बोनस है, पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर है, वो सब आपका सीटीसी का पार्ट होता है. सीटी इज द कॉस्ट टू द कंपनी, मे बी द पीएफ एम्प्लॉयर शेयर, ईएसआई एम्प्लॉयर शेयर, बोनस, ग्रेचुटी और एनी अदर ग्रेशिया, सब कुछ जो भी होता है वो सीटीसी का पार्ट होता है. ये ग्रोस सैलरी जो होती है आपकी मंथली जो आपकी सैलरी है, जिसमें मंथली में आपका ग्रेचुटी नहीं होता उसके अंदर, मंथली में आपका बोनस भी नहीं होता जो आपको ईयरली मिलेगा या दिवाली में मिलेगा, वो उसका ग्रोस सैलरी का पार्ट नहीं है. जो आपका पीएफ का एम्प्लॉयर शेयर है, जो पीएफ वो जमा करा रहा है एम्प्लॉयर आपके बिहाफ पे, वो आपका ग्रोस सैलरी का पार्ट नहीं होता है. वो आपका सब सीटीसी का पार्ट होता है. मेनली ये डिफरेंसेस होते हैं इन तीनों में. बाकी डिटेल में आपको विद एग्जांपल चाहिए तो मैं नेक्स्ट क्लास में कर सकता हूँ, और सभी को अगर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं तो. अगर इससे आपको क्लियर हो गया तो फिर उसकी जरूरत नहीं. Okay, next class we will explain with example also. Any other question?